Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to STEM Genius Point. Okay, now dear students, class 9th mathematics course, and we started our exercise 5.1, and in our previous lecture we started question number 4 and solve first three parts. Now the today lecture is from question number 5, and we solve 4, 5 and 6 part. Okay, now the first we solve a part number 4, that is 4x minus 3y less than equal to 12 and x is greater than equal to minus 3 by 2. ओके, इस इक्वेशन में भी यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है इस क्वेश्चन की। पहली इक्वेशन को आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन जो सेकंड वाली इक्वेशन है, अगर आपको याद हो तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, जिसमें एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें x दिया हुआ था, ओनली एक वेरिएबल था, और दूसरे में भी y दिया हुआ था जिसका एक वेरिएबल था, और उसको हमने जस्ट सिंपली सॉल्व कर लिया था, उसके लिए हमने और कुछ नहीं किया था। इसके भी क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 इसी तरह से सॉल्व करने हैं और बाकी नेक्स्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्टेड अवर टुडे लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके डियर स्टूडेंट्स, this is the question number 4 and part number 4. Now we solve this question by from equation number 1, that is 4x 3y less than equal to 12. Firstly we convert this equation into associate equation, that is 4x 3y becomes equal to 12. Now firstly we find the x intercept, its mean y becomes equal to 0. When y becomes equal to 0 in this equation, left behind is 4x becomes equal to 12, and the x is equal to 12 by 4, and the x is equal to 3. This is the value of x, and we find a first point, that is when x becomes equal to 3 and y is 4. Now we find a second point, that is right as x y intercept. When y intercept, then x becomes equal to 0. In this equation, when x becomes equal to 0, left behind is minus 3y is equal to 12. Okay, when we find the value of y, this one, and y becomes equal to minus of 4. So our second point is when x is 0 and y is minus 4. Now we find the origin. For origin, when for origin and x and y both becomes equal to 0. In this in above equation, that is 4x minus 3y less than equal to 12, when both x and y becomes equal to 0, 0 is always less than equal to 12. So this equation is true and satisfy the conditions and toward the origin. Now we find a second point, both 2 points from a second equation. The second equation is only have a one variable, that is x becomes equal to 3 by 2. When we write associate equation, x becomes equal to minus 3 by 2. Its mean x becomes equal to 1 by 1.5, minus 1.5. There is no x intercept, no y intercept, only this one is equal to 2 points. This is the point of when x, the value of x is equal to minus 1.5. And when we find the origin, when x becomes equal to 0, 0 is always equal to minus 3 by 2, because the value is when x becomes equal to 0, when we find for origin, origin तो हमने फाइंड करना है इस चीज का, 0 becomes equal to greater than equal to minus 3 by 2, minus is always less than 0, so this is also true. Now we draw a graph from these points. So, okay, there is a 2 points from equation number 1 and only 1 point from equation number 2. Now we find the graph of this equation. Okay, the graph is the points are when we write a points, that is first from first equation, the point is 0, and we write here the first 3 and 0, 0 and minus 4, and the other point is minus 1.5. Okay, firstly we write plot these 2 points when 3 and 0 and 0 and minus 4. This is the first
equation points. The first equation is 4x minus 3y less than equal to 12. Okay, now the other points are only minus 1 point or the value of x is always given is minus 1.5. This is the 1.5 equation, 1 and 1.5. Only 1.5, so we draw only vertical lines. This is the second equation and the 1.5, and the equation is x is greater than equal to minus 3 by 2. The both points are toward the origin, so we write here this is the toward the origin, and also we write here toward the origin. This is the region where we shaded. Okay, completed our 4 question. Now students start our question number 5. Okay, the question number 5, and we separate the first equation 3y and 21. Firstly, we write the associate equation, that is 3x plus 7y becomes equal to 21. Now for x intercept, when x intercept, y becomes equal to 0. This y becomes equal to 0, 3, 21. The value of x is x becomes equal to 7. So the points are 0, sorry, y is 0 and x is 7. These are the points. Now for y intercept, when for y intercept, x becomes equal to 0. When x becomes equal to 0, we left behind is 7y becomes equal to 21, and y is 21 by 7, and the y value of y is 3. So we write here the points are when x becomes equal to 0, and we give all y becomes equal to 3. Now for origin, we find for origin x and y both becomes equal to 0 and 0. So the equation is 3x plus 7y less than equal greater than equal to 21, 0. So this is false, not satisfy and away from the origin. Okay, now for the second equation, we write here a second equation is have only a one variable, that is y. Firstly, we write the associate equation. We find only a value of y, that is 4. Only 4. Now for origin, y becomes equal to 0. 0 is always less than 4. तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ गए 7 और 0, 0 एंड 3 आ गया, और y के सिर्फ एक ही पॉइंट आया है, वो है 4. जैसे हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में सिर्फ x हमारे पास एक वेरिएबल था और उसका हमने पॉइंट ड्रॉ किया था, इसी तरह से अब इसका भी पॉइंट आ गया. ओके, अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने अब ग्राफ बनाना है अपने क्वेश्चंस का. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पॉइंट्स आए थे 7, 0, 0, 3, 4. हमारी दूसरी इक्वेशन का था y इज इक्वल टू 4. ओके, सबसे पहले इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. पहला है 7 और 0, यानी कि अगर x हम लोग 7 लेते हैं तो y हमारा 0 है. ओके, सेकंड में हमने अगर x 0 लिया है और y हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास बन जाएंगे 7 और 3 के हिसाब से. ओके, नेक्स्ट अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है. थोड़ी सी डबलिंग हो गई है, इसको करेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारे शेडेड रीजन में प्रॉब्लम ना आ सके. ओके जी, सेकंड है y इज इक्वल टू, सिर्फ हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है, तो मतलब ये हमारे पास y की वैल्यू 4 है और हम लोग हॉरिजॉन्टल ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे. ओके जी, ये हमारे पास आ गया है पहली इक्वेशन और ये आ गई है दूसरी इक्वेशन. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखें हमने जो फाइंड किया था क्या दोनों हमारे पास ओरिजिन की तरफ हैं या नहीं हैं, उनको भी चेक कर लेते हैं कि कौन सा हमारा ओरिजिन है. तो हमने देखा था कि आपके पास जो पहली इक्वेशन है वो फॉल्स थी, वो अवे द ओरिजिन होगी और वो सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, जबकि दूसरी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है. अब पहली इक्वेशन ये वाली जो है, ये लाइन हमने ड्रॉ की है, ये हमारी पहली इक्वेशन है, यानी कि ये है 3x 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21, और सेकंड इक्वेशन है y इज लेस देन इक्वल टू 4.
ओके, अब ये वाली जो पहली इक्वेशन है ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये इसका शेडेड रीजन ये वाला हो जाएगा। ऑल राइट, और जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है मतलब वो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, और इसका रीजन ये हो जाएगा। तो आप देखें कि आपके पास शेडेड रीजन कौन सा बन रहा है, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास शेडेड रीजन का आ रहा है, दोनों इक्वेशन में सेम का। ओके जी, अब हमारे पास इस एक्सरसाइज और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, उसको सॉल्व करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। 5x प्लस 7y लेस देन इक्वल टू 35, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 2। ओके, सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन में हमने क्या काम करना था, हमने देखना था कि एसोसिएट बन रहा है ये नहीं, 5x प्लस 7y और लेस देन इक्वल टू 35 के। ओके, अब ये आपके पास आ गया। अब हमने इसको सबसे पहले क्या काम कर देना है, एसोसिएट इक्वेशन बना लेनी है। 5x 7y बिकम्स इक्वल टू 35। अब हम निकाल लेते हैं x इंटरसेप्ट। जब हम लोग x इंटरसेप्ट करेंगे तो मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल होगी। y हमारा 0 हो गया, और 5x इज इक्वल टू 35 एंड x इज इक्वल टू 35/5। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 7, और इसके साथ ही हमारा पॉइंट क्या बन रहा है, पॉइंट बनता है 7 और 0 का। अब y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। y इंटरसेप्ट करेंगे जब हम लोग, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसे जी डियर स्टूडेंट्स देखें, अब हमने y इंटरसेप्ट की करना है और x 0, इस इक्वेशन के मुताबिक हमारा जब x 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या रह जाएगी, 7y इज इक्वल टू 5 एंड सॉरी 35 इज इक्वल टू 7 डिवाइड में आ गया, और ये कैंसिल होकर कितना बन गया, 5। और सेकंड पॉइंट हमारा क्या बन जाता है, जब x 0 तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ओके, अब हम लोग ओरिजिन चेक कर लेते हैं। ओरिजिन चेक करने के लिए आपने प्रीवियस क्वेश्चन बहुत सारे करके आए हैं, उसमें हमने देखा कि ओरिजिन चेक करते हुए हम लोग क्या करते हैं, फॉर ओरिजिन या सेटिस्फेक्शन चेक करने के लिए हमने क्या करना है, दोनों वैल्यूज को 0 0 के इक्वल कर देने। 0 इज ऑलवेज लेस देन 35, तो ये बात हमारी ट्रू है और ये सेटिस्फाई करता है, इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी कर रहा है। अब हम लोग सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं और सेकंड इक्वेशन को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 2। अब सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, एसोसिएट इक्वेशन ड्रॉ कर लेते हैं। एसोसिएट इक्वेशन में x माइनस 2y बिकम्स इक्वल टू 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग x इंटरसेप्ट कर लेते हैं। x इंटरसेप्ट जब हम लोग करेंगे तो y हमारा क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। जब y 0 के इक्वल हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और हमारे पास पॉइंट क्या बनेंगे, 2 एंड 0। अब सेकंड लेते हैं जी, y इंटरसेप्ट कर लेते हैं। जब हम लोग y इंटरसेप्ट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इस इक्वेशन में अगर x 0 हो जाएगा तो माइनस 2y बिकम्स इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2/-2। ऑलराइट, एंड देन y इज इक्वल टू -1। ये आ गया। अब हमारे पास जब x 0 तो y की वैल्यू कितनी आई, -1। 2 पॉइंट हो गए। अब हमने थर्ड वन क्या चीज फाइंड करनी है, फॉर ओरिजिन, और इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, क्या ये हमारी कंडीशन ट्रू होती है या नहीं। ओके, अब हम लोगों ने क्या किया, x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 2, दोनों वैल्यूज को 0 0 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2, तो ये भी हमारे पास क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, और ये भी सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इन्हीं चारों पॉइंट्स को लेकर हम अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके डियर स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास पहला है 7 और 0, यानी कि x 7 और y 0। यहाँ पर इस पॉइंट को हम लोग सर्कल कर लेंगे। दूसरी इक्वेशन में 0 एंड 5 मतलब x 0 और y 5 आ जाएगा, और ये बन गया हमारा पॉइंट। हम इन दोनों पॉइंट्स को लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बाद हम अगली इक्वेशन को करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट में अब हम लोगों ने क्या कर देना है, नेक्स्ट 2 0 था, मतलब x 2 है और y 0। फिर उसके बाद 0 एंड -1, 0 एंड -1, दिस इज द 0 एंड -1। ये हमने 2 लगाया और इधर हमारा -1 आ गया। ओके जी,
अब इक्वेशंस लिख लेते हैं। ये वाली हमारी पहली इक्वेशन है, ये है 5x 7y लेस देन इक्वल टू 35 के है, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 2। अब देखें दोनों जो थे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते, मतलब 2 टूवर्ड द ओरिजिन था। अगर पहली इक्वेशन कब बनाए तो ये टूवर्ड द ओरिजिन, ये भी आ रही है और दूसरी भी आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो रीजन है ये हमारा क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन कहलाया जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, आज का लेक्चर मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में मिलते हैं और उसमें भी हम लोग कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके जी, थैंक यू सो मच।